Hello and welcome to the next OSPA's one-on-one Vedanta series. As you are aware that we are talking to the budding and enterprising women security officer in this series who come from the civilian background, and this is a wonderful initiative by our dear friend Lieutenant Colonel Himani Thaplial, who gave us the idea to give the platform to these women security officers and speak up their experience, speak up their current profile, and let everybody know that how well they are doing and how what all they can do going forward. So today we have as our guest, her name is Neha Panthi. She is working as the junior security officer in Vedanta Aluminium Limited. I am hailing from city of Lake Bhopal, Madhya Pradesh. I have done BSc from Barkatullah University and post-graduation diploma in computer application from Makhanlal University. I am a naval cadet and I have done NCC certificate with A grade from 1MP Naval Unit NCC Bhopal. I have undergone for training for 3 months and completed diploma in industrial security and intelligence management from Olive Green Institute, Chandigarh in 2016. After that, I joined Vedanta Aluminium Limited, Jharsuguda, and currently I am responsible for the plant I am responsible for the capacity of plant 2400 megawatt thermal power plant. मैं आपके बहुत सारे कोलीग से भी बात कर रहा हूँ और मेरे को ये जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि सिक्योरिटी एज ए प्रोफेशन आपने क्यों चुना। एनसीसी कैडेट आप रह चुकी हैं और आपने वहाँ अच्छा किया, उसके बाद सिक्योरिटी एज ए प्रोफेशन क्यों चुना? टू बी ऑनेस्ट सर, जैसे सर मैंने एनसीसी किया हुआ है तो मैं डिफेंस सर्विस में जाना चाहती थी। जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को लिया एज मैं अपना साथ ही साथ अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकूं और एज जैसे बोलते हैं सिक्योरिटी में वुमेन्स आर नॉट सुटेबल फॉर सिक्योरिटी, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आई बिलीव कि सिक्योरिटी में वुमेन कैन डू एज गुड एज अ बेटर, क्योंकि हमारे पास एनालिटिकल स्किल्स है एंड पोटेंशियल लेवल है। तो सर कुछ केसेस ऐसा होता है जहाँ पर मेन उस चीज को एग्रेसिवली हैंडल करते हैं बट वुमेन पोलाइटली उस केस को हैंडल करके नॉर्मली हैंडल कर सकती है। सो सिक्योरिटी प्रोफेशनल मुझे इसने बोल्डर बनाया, शार्पर बनाया, स्ट्रॉन्गर बनाया and I believe कि security is best career and I have completed 4 years with Vedanta and I wanted to continue this as a security as a career and I am proud I am a security professional. That is wonderful, and we wish you all the best to go forward in security as a profession and bolder, sharper, and stronger. That is why Neha chose security as a profession. Neha, what we want to know from you, and we understand that this is perhaps a part of your larger portfolio. We know that access control or gate management plays a very critical and vital role in any, at any layer of a security function. Do you think at an industrial setup where you work, it is different or it is same, and why do you think so? Sir, it is not different. Sir, as a industry में भी सर जैसे हम गेट मैनेजमेंट एंड एक्सेस कंट्रोल सेम है, सिक्योरिटी इंडस्ट्री में भी सेम है, क्योंकि सर ऐसा मैंने बोला कि 2400 मेगावाट पावर प्लांट संभाल रहे हैं, तो सर इतना बड़ा मेगावाट पावर प्लांट है तो उसमें एक्सेस कंट्रोल के लिए मैन पावर मूवमेंट भी
बहुत ज़्यादा है। जैसे 2400 मेगावाट पावर प्लांट के लिए पर डे का 1500 मैन पावर इन आउट मूवमेंट डेली बेसिस पे होता है। अर्लियर आई वाज लुकिंग आफ्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ पर सर जो है पर डे 4000 मैन पावर एंट्री एग्जिट मूवमेंट है। तो इसलिए सर एक्सेस कंट्रोल सेम है, वनरेबल भी है एंड डेलिकेट भी है। तो आई थिंक सर वो डिफरेंट नहीं है, सेम ही है सर। इतने बड़े सेटअप में जहाँ 1500 आपने बताया कि मैन पावर इन एंड आउट इतने बड़े सेटअप में होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सिक्योरिटी का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है यहाँ पे, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप अपने आप को रोज ट्रेन नहीं करें, नए स्किल सेट नहीं लाएं और डेवलपमेंट नहीं करें इन द प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं, उसके बिना ये मैनेज करना मुश्किल होता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आप क्या करती हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज योर रोल इन पर्टिकुलर इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मॉड्यूल in Vedanta? आई बिलीव लर्निंग अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कोई भी प्रोफेशन है, जैसे लाइक सिक्योरिटी प्रोफेशन है, हमें ट्रेनिंग मिलना एंड देना। अगर हम गार्ड डिप्लॉय कर रहे हैं, उनको ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटिल अनलेस उसको अपना वर्क ही नहीं पता होगा तो काम कैसे करेगा। तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑन ड्यूटी रोल हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पर ट्रेनिंग देते हैं मंथली बेसिस पर। Like topics are special role on duty, human rights training, basic firefighting, first aid training, prevention of sexual harassment. Because sir यहाँ पर men and women both are here. तो men अगर गेट पर वर्क कर रहा है तो उसे क्या क्या पोश है, क्या क्या उसको देखना है, वुमेन के साथ उसको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे बात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो मॉक ड्रिल ट्रेनिंग देते हैं सर एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्रोफेशनल एज अ, ये सारा ट्रेनिंग हम कवर करते हैं सर मंथली बेसिस पर सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स के लिए। आपने पॉश के बारे में बोला, इंडस्ट्रियल सेटअप में पॉश एक तो इम्पोर्टेंट होता है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए कि इसमें आप क्या करती हैं, आपकी इसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है? पॉश अवेयरनेस सर बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक सर यह मैन वुमेन दोनों ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। बिकॉज सर इंडस्ट्री में हमें, इंडस्ट्री एक ऐसा एरिया है क्योंकि सर बहुत बड़े एरिया में ये कवर है। अंदर में कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड एंड अंडर स्किल्ड, अनस्किल्ड लोग, हर टाइप के लोग आते हैं। तो उन्हें प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, क्या क्या लॉज है इसके ऊपर, क्या क्या उनको प्रिवेंशन लेना चाहिए, कैसा उनको बिहेव करना चाहिए लेडीज के साथ, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा ट्रेनिंग और अवेयरनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस बारे में आपसे थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ नेहा, ये जो आप सारी ट्रेनिंग देते हैं तो इसके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं? बहुत इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, इसके रिजल्ट्स सेटिस्फैक्टरी आते हैं, मतलब आर यू सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग पॉश? यस सर, ये सर ट्रेनिंग अवेयरनेस के कारण पोस्ट का बहुत इफेक्ट पड़ा, पोस्ट ट्रेनिंग का बहुत इफेक्ट पड़ा। आज तक हमारा मतलब ऐसा कोई केस नहीं आया है, इवन अनस्किल्ड से लेके अपर लेवल तक ऐसा कोई केस नहीं आया अभी तक कि कोई भी सिक्योरिटी की तरफ से हो या फिर अदर डिपार्टमेंट से या कोई कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स या इवन एम्प्लॉयज से ऐसा कोई केस नहीं आया है कि पोस्ट रिलेटेड कोई कंप्लेन किया हो या उसका कोई ग्रीवेंस डाला हो। वेरी नाइस नेहा, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस सक्सेस के ऊपर। तो अब मैं ना थोड़ा सा आपसे थोड़ा अलग, थोड़ा हटके बात करना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी की ड्यूटी आप कर रही हैं, आपने एक्सेस कंट्रोल, गेट मैनेजमेंट के बारे में हमको बताया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बारे में आपने हमको बताया, आपने पॉश के बारे में हमको बताया। जब आप ये सब नहीं कर रही होती हैं नेहा, जब आप सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं होती हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में नहीं होती हैं, तब आप क्या करती हैं? जब मैं ऑन ड्यूटी नहीं होती हूँ सर, तो मुझे, मेरी हॉबी है डांसिंग, कुकिंग, रनिंग एंड ट्रैवलिंग। तो जब भी मैं, जैसा सर मैंने बताया, यहाँ 2400 मेगावाट पावर प्लांट है एंड यहाँ का जो कल्चर है, टाउनशिप हमारा बहुत बड़ा टाउनशिप है,
वर्ल्ड क्लास टाउनशिप है। एंड यहाँ पर जो एनी इवेंट, कोई भी कल्चरल इवेंट होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो उसको इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो कभी भी मौका मिलता है मुझे, मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती हूँ। इवन मैं अपने स्किल्स को, मतलब ये मेरा हॉबी है, साइड बाय साइड प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस में करती हूँ। तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है। तो मैं खाली टाइम में, जब मेरा फ्री टाइम होता है, तो मैं डांस करती हूँ। एंड कुकिंग, कुकिंग मेरी हॉबी है। तो मुझे न्यू न्यू वीडियोस देखकर, न्यू न्यू डिशेस देखकर, मुझे ऐसे बनाना, प्रेजेंट करना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं न्यू न्यू डिशेस को सीख कर उसको बनाती हूँ, और उसको कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हूँ वो मैं सीखती हूँ। एंड आई लव रनिंग सर, मुझे रनिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं रनिंग भी करती हूँ अपना फिटनेस को देखते हुए। तो आप अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं, अच्छा अच्छा खाना खाती हैं, बनाती हैं, और अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए रनिंग और डांसिंग करती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस आपने बड़ा अच्छा फिटनेस के लिए भी रखा हुआ है, लाइफ में बैलेंस। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम मुझे आपके पास कभी झारसुगुड़ा आने का मौका मिलेगा, तो क्या मुझे आपके हाथ का बना हुआ खाना मिल सकता है खाने को? बिल्कुल सर, मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेहा, आप जानती हैं कि ऑस्पास इज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ऑस्पास अवार्ड्स होते हैं जो यूके बेस्ड हैं, एंड ऑलरेडी ऑस्पास इज प्रेजेंट इन अबाउट 16-17 countries, of course including India. तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से what is that one message that you will want to give to the audience? क्या संदेश आप देना चाहते हैं अपने colleagues को, the women in security, otherwise to the girls, or anybody? What is the message that you want to give to everyone? यस सर। सर, मैं एक मैसेज देना चाहूँगी। इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। It will make yourself, and it will not only improve you, and it will improve all those around you. What a wonderful message, Neha. Investment in yourself is the best investment. Fantastic. Thank you very much, Neha, for being on the OSPA's one-on-one Vedanta series. आपके और आपके colleagues के साथ मुझे बात करने में बहुत मजा आ रहा है, and I really enjoy talking to you also. And I go back more educated and learn about what you have just told us about the access control, gate management, and especially the training and development in the industrial sector. So thank you so much. Wish you all the best and have a good and bright future. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. So this was Neha Panthi from Vedanta Aluminium Limited as a part of our OSPA's one-on-one Vedanta series. And I have really enjoyed interacting to all of them till now, and hope to have more such budding, enterprising junior to mid-level security officers who have chosen security as a profession, even though they are not from the defense or police background. Hats off and kudos to you. We wish you all the best and all the good luck for your future. With that, we come to the close of today's session. Thank you very much, everyone, and take care and stay safe. Thank you so much.